ہماری آج کی جو میڈیسن ہے وہ ہے کاکولس۔ کاکولس انتہائی کمزوری کی دوا ہے۔ تمام جسم کمزور معلوم ہوتا ہے، گردن کے پٹھے کمزور، لہذا سر کو سہارا نہیں دے سکتا۔ بستر سے سر اٹھانے، کھڑے ہونے یا بولنے پر کمزوری کا غلبہ، چھوٹی کمر میں درد جیسے فالج ہو گیا ہو، کھڑے ہوتے یا چلتے وقت کمزوری کا احساس۔ یہ احساس تمام کمزوریاں حرام مغز کے کمزور ہو جانے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ مختلف اعضاء میں خالی ہونے کا احساس پایا جاتا ہے، جو کہ ایک طرح سے کمزوری ہی کی حالت ہے۔ یہ خلا کا احساس خصوصاً سر میں، پیٹ میں، چھاتی میں، دل میں، معدے میں، تمام اندرون اعضاء میں پایا جاتا ہے۔ اس تمام کمزوری کا نتیجہ عموماً فالج ہوا کرتا ہے، جو کہ اکثر ایک جانب واقع ہوتا ہے۔ ہاتھ پاؤں اکثر سو جاتے ہیں۔ متلی اور چکر کاکولس کی خاص علامات ہیں اور تقریباً ہر کیس میں ملتی ہیں۔ اٹھنے پر موٹر گاڑی، کشتی، جہاز وغیرہ میں کہکا ہونا اور چکر آنا۔ زیادہ عرصہ جاگتے رہنے کے بعد اثرات، مثلاً کسی لمبی بیماری میں بیوی کا بیمار خاوند کے لیے کئی ہفتے جاگتے رہنا۔ اس طرح جاگنے سے کاکولس کی تمام علامات یعنی کمزوری، فالج سی کیفیت، چکر، دماغ سن ہو جانا یا خالی ہونے کا احساس وغیرہ پایا جاتا ہے۔ 1-2 گھنٹہ نیند کھو جانے سے ہی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ مریض فالتو نہیں جاگ سکتا۔ پیٹ پھولا ہوا یعنی کہ پیٹ میں گیس۔ غذا سے اور اس کی بو سے جس طرح کالچیکم کی طرح نفرت ہوتی ہے، اسی طرح اس میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ پیٹ میں گیس اور اس کی وجہ سے پیٹ میں درد کا ہونا، حیض بندش، سر کے پیچھے حصے کا درد، درد والی جگہ کھلتی اور بند ہوتی محسوس ہوتی ہے۔ یہ دوا اکثر سمندری بیماری، بندش حیض، سر درد، چکر اور پیٹ درد اور عام کمزوری میں استعمال ہوتی ہے۔ دوا کی مرکزی علامات: نیند ضائع ہونے کے بعد اثرات، عام اعصابی کمزوری، پیٹ میں درد، سر کا چکرانا، اس میں خلا کا احساس، ہاتھ پاؤں کا سو جانا، چکر، متلی اور کمزوری ہیں۔ اس کی مددگار ادویات کون سی ہیں؟ اس کی مددگار ادویات پیٹرولیم۔ اس کی دافع اثر ادویات کون سی ہیں جو کہ اس کا اثر زائل کرتی ہیں؟ کافیہ، نکسومیکا، کیمفر، کیوپرمیٹ، اگنیشیا، اسٹیفیسیگیریا۔ جو اس میڈیسن کے بعد اس کو نقصان کرتی ہیں وہ ادویات یہ ہیں: کافیہ، کاسٹیکم۔ اس کی طاقت کون سی استعمال کرنی چاہیے؟ یہ 30 طاقت سے لے کے 200 طاقت اور 1 m تک استعمال کی جا سکتی ہے۔ تو دوستو، جن دوستوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ جو دوست چینل سبسکرائب کر لیں، اور جنہوں نے کر لیا ہے ان کا شکریہ۔ امید ہے مٹیریا میڈیکا کی یہ میڈیسن آپ کو
फ़ायदा ज़रूर देगी इंशाल्लाह। आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर शेख मोहम्मद अदनान चिश्ती, अरसा 22 साल से होम्योपैथिक प्रैक्टिस कर रहा हूँ। लेक्चरार इब्न सीना होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, साबिक लेक्चरार फैज़ान होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज। तो दोस्तों, मेरा आज का जो टॉपिक है वो है स्मोक। अगर स्मोक के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखें। इंसानी जिस्म पर इसके असरात और नुकसानात क्या हैं। आजकल लाहौर और पंजाब के इर्द गिर्द शहरों में स्याही मैल धुंध छाई हुई है। ये धुंध क्या है? मुख्तलिफ धुओं से मिलकर ये धुंध बनी है, जैसा कि गाड़ियों का धुआं, भट्ठों का धुआं और कारखानों का धुआं। खासकर आजकल के मौसम में धान की फसल को जलाया जाता है, जिसकी वजह से धुएं में इजाफा होता है और फ़ज़ाई आलूदगी की सूरत में अपेयर होता है। इस धुंध को तेज़ाबी धुंध भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत से केमिकल शामिल हो जाते हैं जो कि इंसानी सेहत के लिए और जानदारों की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं। हमें इसके मुज़र असरात से बचना होगा और आइंदा के लिए इन मुज़र असरात पैदा करने वाली धुंध को हमेशा के लिए इसको ख़त्म करने वाले मंसूबे बनाना होंगे। अलामात: सांस का मसला, गले में खराश, आँखों में जलन, खारिश और आँखों का सुर्ख हो जाना, खांसी और घुटन का होना। इसकी वजह से इम्यूनिटी सिस्टम लो हो जाता है। सर दर्द होना, थकावट का महसूस होना। स्मोक की वजह से बच्चे और बूढ़े ज़्यादा मुतासर होते हैं। बुज़ुर्गों में राशे की बीमारी। पूरी दुनिया में 4.2 मिलियन लोग फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से इंतकाल कर जाते हैं। हामला औरतों में मसाइल, बच्चे की ग्रोथ कम हो जाना, पैदाइश के बाद उसका वज़न कम होना। इसलिए हमें स्मोक के मुज़र असरात से बचें। इसके लिए मुज़र असरात से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहें। अगर कोई मजबूरी है तो घर से निकलें, वरना अगर कार में जाना हो तो शीशे बंद कर लें। अगर मोटर बाइक पे जाना हो तो ऐनक का इस्तेमाल करें, हेलमेट का इस्तेमाल करें और मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। घर वापस आते वक्त या दफ्तर जाएं तो हाथ, मुंह और नाक को अच्छी तरह साफ करें। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं और सब्जियों और दालों का इस्तेमाल और फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। इसमें होम्योपैथिक जो सबसे बेस्ट मेडिसिन है वो हमारी आँखों में अगर जलन हो तो आपने यूफ्रीजिया 30 2 कतरे दिन में 3 बार आप इस्तेमाल करें, या इससे आपकी आंखों में जलन, खारिश और पानी का आना बंद हो जाएगा। और अगर नज़ला ज़ुकाम और छींकें वगैरह शुरू हो जाएं तो आप इलियम सीपा 30 ताकत में सुबह दोपहर शाम 5-5 कतरे इस्तेमाल कर लें। इसके इस्तेमाल करने से आपको नज़ला ज़ुकाम और छींकें ख़त्म हो जाएंगी इंशाल्लाह। और तीसरी हमारी मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम 200। जिन मरीज़ों को धुंध और स्मोक की वजह से सांस का मसला दरपेश हो और घुटन महसूस हो, बेचैनी हो, तो वो आर्सेनिक 200 की एक खुराक रोज़ाना इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल करने से घुटन और सांस का मसला हल हो जाएगा। जिन बच्चों और बूढ़ों को सांस लेते वक्त बलगम रेशा महसूस हो, उनकी छाती में सीटी की आवाज़ आए और बलगम की आवाज़ आए, तो उन मरीज़ों को एंटीमोनियम टाट 30 ताकत में सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करनी चाहिए। तो दोस्तों, आपने होम्योपैथिक ये मेडिसिन बाज़ार से ख़रीद लेनी है। अगर
کوئی نزدیک ترین ہومیوپیتھک سٹور اویلیبل نہ ہو تو ہمارے دیے گئے نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو جن دوستوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ دوست ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، اور جنہوں نے کر لیا ان کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پہ ویلکم کرتا ہوں۔ میرا نام ڈاکٹر شیخ محمد عدنان چشتی، عرصہ 22 سال سے ہومیوپیتھک پریکٹس کر رہا ہوں۔ لیکچرار ابن سینا ہومیوپیتھک میڈیکل کالج، لیکچرار فیضان ہومیوپیتھک میڈیکل کالج۔ تو دوستو، آج کا میرا ٹاپک ہے مونکی پاکس۔ آپ نے خبروں میں آج کل بہت سنا ہوگا کہ مونکی پاکس کے کیس بہت زیادہ ہونے شروع ہو چکے ہیں۔ آئیے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ ہوتا کیوں ہے، اس کی علامات کیا ہیں اور اس کی ہومیوپیتھک میں میڈیسن کون سی ہے۔ تو دوستو، افریقہ ملک سے پاکستان کے اندر یا کسی اور ملک میں یہ لوگ اگر جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر جو ہے ان کی ویکسینیشن کی جاتی ہے یا ان کو آئسولیشن میں رکھا جاتا ہے تاکہ کسی اور مریض کو یہ مسئلہ نہ ہو۔ تو یہ ایک انفیکشن وائرس اس کو کہا جاتا ہے۔ اس سے ہوتا کیا ہے، اکثر مریضوں کو فیس کے اوپر سب سے پہلے دانے شو ہوتے ہیں، اس دانوں کی وجہ سے پھر مریض کو پوری باڈی کے اندر دانے سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ اکثر مریضوں کو ہم نے دیکھا ہے ان کی آنکھوں کے اندر انفلیمیشن، سوزش سٹارٹ ہو جاتی ہے، خارش سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ ہاتھ اور پاؤں کے اوپر جو دانے بنتے ہیں ان کے اندر پس پیدا ہو جاتی ہے، اور اکثر مریضوں کو بخار ہو جاتا ہے، نمونیا ہو جاتا ہے، اور بہت سارے لوگوں کو نزلہ زکام اور سیزنگ، چھینکیں وغیرہ شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس مرض سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اکثر لوگوں کو گھروں میں جو عام روٹین میں کیٹس ہیں، ڈاگز پال کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، یا ہم مرغی کا گوشت کھاتے ہیں یا بڑا گوشت کھاتے ہیں یا ہم چھوٹا گوشت کھاتے ہیں، ایسے جانور جن کے گوشت میں جو ہم کھاتے ہیں ان کے گوشت میں مونکی پاکس کا جو وائرس ہوتا ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا، تو وہ ہم کھا لیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے مونکی پاکس کے جو انفیکشن وائرل ہے ہماری باڈی کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ تو اس سے یہ مختلف بیماریاں جو ہیں وہ شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ جان لیوا تو نہیں ہے، لیکن 1-2% یہ جان لیوا بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی احتیاط یہی ہے کہ کسی بھی مریض کو یہ مسئلہ پیدا ہو تو وہ فوراً اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرے۔ مثلاً اگر کسی کو بخار ہوتا ہے تو وہ بخار کی دوائی لے، اگر اس کو نزلہ زکام ہوتا ہے تو وہ نزلہ زکام کی دوائی لے، اگر اس کو فیس کے اوپر دانے، چہرے کے اوپر دانے اگر مونکی پاکس کے نظر آتے ہیں تو وہ اپنے قریبی ڈاکٹر سے رابطہ کرے۔ تو مونکی پاکس کی جب علامات اس کو شو ہو جائیں تو اس مریض کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو آئسولیشن میں رکھے، دوسرے لوگوں سے دور رہے۔ تو آئیے اس میں ہومیوپیتھک کی جو بیسٹ میڈیسن ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، انشاءاللہ اس سے مریضوں کو شفا ہوگی۔ سب سے پہلی جو مریضوں کو اگر دانے شو ہوتے ہوں فیس پہ یا پوری باڈی پہ، تو اس کے لیے ویرولینم جو ہومیوپیتھک کی میڈیسن ہے، اس کے 5 قطرے آپ نے روزانہ لینے ہیں۔ ویرولینم میڈیسن کا نام میں نے بتا دیا ہے۔ دوسری میڈیسن ہے ایکینیشیا انگسٹیفولیا۔ ایکینیشیا انگسٹیفولیا 15 قطرے صبح، 15 دوپہر اور 15 شام آپ نے پانی میں ڈال کے پینے ہیں، دن میں 3 بار۔ اس سے باڈی کے اوپر جو خارش ہے، اس کے اوپر باڈی کے اوپر جو دانے بنے ہوئے ہیں، اس کے اندر جو پس پیدا ہوتی ہے، یہ مریض کے خون کو صاف کرنا شروع کر دے گی، اور انفیکشن وائرل جو بیماری ہے یہ والی مونکی پاکس، اس کو آہستہ آہستہ ختم کر دے گی۔ ویسے بھی یہ بیماری جو بھی ہے مونکی پاکس، یہ 21 دن تک رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسری میڈیسن ہے، اگر کسی مریض کو نزلہ زکام اور چھینکیں وغیرہ آتی ہوں تو دوائی ہے سباڈلا 200 طاقت میں 1 خوراک صبح نہار منہ، وہ مریض لیں جن کو مونکی پاکس سے نزلہ زکام ہوا ہے۔ اب جن مریضوں کو آنکھوں میں خارش سٹارٹ ہو گئی ہے، جن مریضوں کو آنکھوں میں انفلیمیشن ہو گئی ہے، اور ایسے مریض جن کو یہ مونکی پاکس ہوا ہے، آنکھوں سے پانی آنا شروع ہو گیا ہے، تو وہ مسعود فارمیسی کا آئی برائٹ لوشن لیں، وہ استعمال کریں۔
इंशाल्लाह उससे शिफा होगी। और यूफ्रीजिया होम्योपैथिक की 30 ताकत में, यूफ्रीजिया 30 ताकत में 5-5 कतरे दिन में 3 बार इस्तेमाल करें। और सबसे आखिर में बेस्ट मेडिसन जो है वो इसकी दवाई है थूजा। थूजा 200 ताकत में आपने एक खुराक रोज़ाना लेनी है। जब मरीज़ के जिस्म के ऊपर दाने उभर जाएं, जैसे कि आम मरीज़ों में वाट्स मोके होते हैं, ये मोंकी पॉक्स के भी इसी तरह पानी वाले दाने जो हैं वो ऊपर को उभर जाते हैं, जिसमें पस भी होती है, पानी भी निकलता है, और वो पानी जिस जिस जगह पे लगता है वो बढ़ता जाता है। तो थूजा 200 ताकत में ये आप मेडिसिन लेंगे, एक खुराक रोज़ाना। इंशाल्लाह इन दवाइयों से मोंकी पॉक्स के जो मरीज़ हैं वो ठीक होना शुरू हो जाएंगे। ऐसे मरीज़ जो जिनको बुखार हो जाता है मोंकी पॉक्स की वजह से, वो मरीज़ आर्सेनिक एल्बम 200 ताकत में एक टाइम रोज़ाना इस्तेमाल करें। इससे नमूनिया भी ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, और सर्दी से बुखार भी ठीक हो जाएगा। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो दोस्त मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और जिन दोस्तों ने कर लिया है उनका शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर शेख मोहम्मद अदनान चिश्ती। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे एक आम मगर परेशान कुन बीमारी दमा अस्थमा के बारे में, जो हज़ारों लोगों की ज़िंदगी मुश्किल बना देता है। दमे में सांस लेने में दुश्वारी, खांसी और सीने में जकड़न जैसी अलामात सामने आती हैं, लेकिन फ़िक्र की कोई बात नहीं। होम्योपैथिक में दमे का बेहतरीन इलाज मौजूद है, जो हम आपको तफसील से बताएंगे। अगर आप भी दमा या सांस की तकलीफ में मुब्तला हैं या किसी मरीज़ को जानते हैं तो ये वीडियो मुकम्मल तौर पर देखें। वीडियो को लाइक करें और मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। दमा क्या है? दमा एक सांस की बीमारी है जिसमें सांस की नालियां तंग हो जाती हैं, जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है। बाज़ लोगों को दमा मौसम बदलने, धूल, मिट्टी या एलर्जी की वजह से होता है, जबकि कुछ को ये वरासती तौर पर लाहक होता है। दमे का हमला किसी वक्त भी आ सकता है और बाज़ औक़ात ये बहुत ख़तरनाक हो सकता है। दमे की वजूहात। दमा होने की कई वजूहात हो सकती हैं, जैसे कि धूल, मिट्टी, पोलन और धुएं से एलर्जी, सर्दी या ठंडी हवा का सामना करना, ज़्यादा वर्जिश या भाग दौड़ के बाद सांस फूल जाना, सिगरेट नोशी या गाड़ियों के धुएं में ज़्यादा वक्त गुजारना, शदीद ज़हनी दबाव और स्ट्रेस, मोटापा और सांस की नालियों पर दबाव। अगर आपको इनमें से कोई मसला है तो दमे के अमकानात ज़्यादा हो सकते हैं। दमे की चंद आम अलामात ये हैं: सांस लेते वक्त सीटी जैसी आवाज़ आना, रात या सुबह के वक्त ज़्यादा खांसी आना, सीने में जकड़न और घुटन महसूस होना, जल्दी थक जाना और सांस लेने में दिक्कत महसूस होना। अगर ये अलामात मुस्तकिल नज़र आए तो फौरी इलाज ज़रूरी है ताकि दमा मज़ीद ना बढ़े। अब आते हैं असल इलाज की तरफ। होम्योपैथिक में कई ऐसी दवाएं हैं जो दमे के मुख्तलिफ मराहल में फ़ायदा देती हैं। मैं आपको कुछ बेहतरीन मेडिसन के बारे में बताऊंगा। ये मेडिसन दमे के मरीज़ों के लिए बेहतरीन साबित होती हैं, लेकिन हर मरीज़ की अलामात के मुताबिक दवा का इंतखाब करना ज़रूरी होता है। अगर आपको सही दवा का इंतखाब करने में मुश्किल हो तो आप क्लिनिक का विज़िट कर सकते हैं या हमारे दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। कुदरती तदाबीर। दमे के मरीज़ इन चंद कुदरती तदाबीर पर अमल करें तो बेहतरी आ सकती है। मसलन शहद और अदरक की चाय पिएं, क्योंकि ये सांस की नालियों को खोलती है। धूल, मिट्टी और धुएं से दूर रहें। रोज़ाना हल्की वॉक और सांस की वर्जिश करें। दूध और ठंडी चीज़ों से परहेज़ करें। गर्म पानी से भाप लें ताकि सांस की नालियों में सुकून आए और वो खुल जाएं। अगर आप इन हदायत पर अमल करेंगे तो दमे की शिद्दत कम हो सकती है इंशाल्लाह।
تو دوستو آج ہم نے جانا کہ دمہ کیا ہے، اس کی وجوہات، علامات اور بہترین ہومیوپیتھک علاج کون سا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائکس اور کمنٹس ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہومیوپیتھک میں بہت اچھی میڈیسن بلاٹا، جو کہ بہت ہی مشہور میڈیسن ہے، اس کے 15 قطرے دن میں 3 بار آپ استعمال کریں، انشاءاللہ دمہ بہت جلد ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا اور سانس کی نالیاں کھل جائیں گی۔ اور دوسری ہماری میڈیسن ہے اسپیڈوسپرما مدر ٹینکچر، اس کے 15 قطرے دن میں 3 بار استعمال کریں۔ اس کے بعد مسعود فارمیسی کا HR نمبر 47، اس سے سانس کی نالیاں کھلتی ہیں، اس کا بہت اچھا رزلٹ دیکھنے میں آیا ہے۔ 15 قطرے دن میں 3 بار استعمال کیے جائیں۔ اگر رات کو لیٹتے وقت بچوں میں یا بڑوں میں سیٹی کی آواز آئے، بلغم کھڑکھڑاتی ہو، تو اینٹی مونیم ٹارٹ 30 طاقت میں 5 قطرے صبح دوپہر شام استعمال کریں، انشاءاللہ بلغم نکلنا شروع ہو جائے گی۔ اگر بلغم مشکل سے نکلے اور الٹی کی کیفیت ہو تو اپیکاک 30 طاقت میں استعمال کریں، 5 قطرے دن میں 3 بار۔ جن مریضوں میں بہت زیادہ بے چینی پائی جائے، پیاس تھوڑی تھوڑی محسوس ہو، رات سوتے وقت کھانسی سٹارٹ ہو جائے اور موسم ٹھنڈا ہو، تو آرسینک 200 طاقت میں 1 خوراک روزانہ استعمال کریں، اس سے بے چینی، ڈپریشن، کھانسی انشاءاللہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہے نیٹرم سلف، یہ موسمی دمیاوی مرض کے لیے استعمال ہوتی ہے، اس کے 4 ٹیبلٹ صبح دوپہر شام استعمال کرنے سے انشاءاللہ دمہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو دوستو آپ نے دمے کے بارے میں تفصیل سے سنا، امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہومیوپیتھک ڈاکٹر شیخ محمد عدنان چشتی کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میرا نام ہومیوپیتھک ڈاکٹر شیخ محمد عدنان چشتی۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسی بیماری کے بارے میں جو عام تو نہیں، لیکن جن کو ہوتی ہے وہ شدید تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں فلاریاسس کی، جو مچھروں کے کاٹنے سے پھیلتی ہے اور جسم کے کچھ حصے، خاص طور پر ٹانگیں، بہت زیادہ سوج جاتی ہیں۔ اگر آپ یا آپ کے کسی جاننے والے کو یہ مسئلہ ہے تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ میں آپ کو اس بیماری کی وجوہات، علامات اور بہترین ہومیوپیتھک علاج کے بارے میں مکمل رہنمائی دوں گا۔ فلاریاسس کیا ہے؟ فلاریاسس ایک پیراسائٹک طفیلی بیماری ہے جو ایک قسم کے کیڑے فلاریل وارم کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہ کیڑے مچھر کے کاٹنے سے جسم میں داخل ہوتے ہیں اور ہمارے لمفیٹک سسٹم کو متاثر کرتے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا اثر ٹانگوں، بازوؤں اور بعض اوقات جنسی اعضاء پر پڑتا ہے، جس سے وہ انتہائی سوج جاتے ہیں۔ فلاریاسس کیسے پھیلتی ہے؟ یہ بیماری زیادہ تر ایسے علاقوں میں پائی جاتی ہے جہاں صاف پانی کی کمی اور مچھروں کی بہت زیادہ مقدار ہوتی ہے۔ جب ایک متاثرہ شخص کو مچھر کاٹتا ہے تو وہ اس بیماری کے جراثیم لے کر دوسرے شخص کو کاٹتا ہے، جس سے وہ بھی متاثر ہو جاتا ہے۔ پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش، افریقہ اور جنوبی امریکہ کے کچھ علاقوں میں یہ بیماری زیادہ عام ہے۔ فلاریاسس کی علامات: یہ بیماری آہستہ آہستہ بڑھتی ہے اور اس کی چند علامات درج ذیل ہیں۔ جسم کے مختلف حصوں میں شدید سوجن، زیادہ تر ٹانگوں اور بازوؤں میں، جلن اور خارش، بخار اور کمزوری، متاثرہ حصے میں بھاری پن اور سختی، لمفیٹک گلینڈز کی سوجن۔ ہومیوپیتھک علاج: فلاریاسس کا ہومیوپیتھک علاج انتہائی مؤثر ثابت ہو سکتا ہے اگر صحیح دوا منتخب کی جائے۔
मैं आपको कुछ बेहतरीन होम्योपैथिक दवाइयाँ बता रहा हूँ जो इस बीमारी में मददगार साबित हो सकती हैं। सबसे पहले हमारी मेडिसिन होम्योपैथिक की अबराटीनम 30 में 5-5 कतरे दिन में 3 बार। इससे शदीद सोजन और मरीज बहुत कमज़ोर हो, जिसकी हड्डियां तो कमज़ोर हों लेकिन उसके ऊपर स्वेलिंग हो जाए, इसके लिए अबराटीनम 30 ताकत में इस्तेमाल की जाएगी। उसके बाद आर्सेनिक एल्बम 200 ताकत में 1 खुराक रोजाना। अगर मरीज को रात में जलन हो और कमजोरी का एहसास हो तो आर्सेनिक बहुत अच्छा काम करेगी। उसके बाद हमारी सबसे बेस्ट जो मेडिसिन है वो है हाइड्रोक्टाइल, जो कि जिल्द के कैंसर में बहुत ज़्यादा काम करती है। अगर जिल्द सख्त हो जाए, सोजन हो जाए या पाँव हाथी की तरह हो जाएं तो उसके लिए हाइड्रोक्टाइल बहुत अच्छा काम करेगी इंशाल्लाह। इसके 15-15 कतरे दिन में 3 बार इस्तेमाल करने से हाथी पाँव वाले जो मरीज हैं उनको आराम आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद हमारी मेडिसिन है थूजा ऑक्सी। अगर लिम्फेटिक सिस्टम कमज़ोर हो और जिस्म में गैर ज़रूरी ग्रोथ हो तो उसके लिए थूजा 200 की 1 खुराक रोज़ाना इस्तेमाल करने से इंशाल्लाह यह मसला हल होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद जिन हाथी पाँव वाले मरीजों में जख्म गिल्टियां बन रही हों और सफ़ेद कलर का मवाद खारिज हो रहा हो तो उन मरीजों के लिए सिलेशिया 200 ताकत में 1 खुराक रोज़ाना या 1 mg की 1 खुराक हफ्ते में 1 बार दी जाए। ये दवाएं मरीज की हालत के मुताबिक ये दवाएं मरीज की हालत के मुताबिक दी जा सकती हैं, लेकिन बेहतरीन नताज के लिए होम्योपैथिक डॉक्टर से रुजू करें या हमारे दिए गए नंबरों पर आप रब्ता कर सकते हैं। घरेलू और कुदरती इलाज। होम्योपैथिक इलाज के साथ साथ कुछ कुदरती तदाबीर भी इस बीमारी में फ़ायदेमंद हो सकती हैं। मुरंगा जो सुहांजना जिसको कहा जाता है, इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स लिम्फेटिक सिस्टम को डिटॉक्स करने में मदद देते हैं। ये मुरंगा होम्योपैथिक अद्वियात में भी शामिल होती है और मदर टेंचर में भी अवेलेबल मौजूद है। हल्दी और नीम का इस्तेमाल। नीम और हल्दी कुदरती एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी खसूसियात रखते हैं। होम्योपैथिक में हल्दी कौरकुमा लूंगा, इसके 15-15 कतरे दिन में 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्म पानी से सेंकाई। सोजन वाले हिस्सों पर गर्म पानी में नमक डालकर सेंकाई करें या हीट पहुंचाएं। कलेजी और खून बनाने वाली ग़िज़ाएं खाएं जैसा कि खजूर, गुड़, अनार और चुकंदर। ज़्यादा पानी पिएं ताकि जिस्म में जहरीले मादे निकल सकें। फिलियारियासिस से बचाओ। इस बीमारी से बचने के लिए सबसे अहम चीज़ मच्छरों से बचाओ। आप ये इक़दामात कर सकते हैं। सोते वक्त मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। घरों में मॉस्किट या मच्छर मार स्प्रे करें। खड़े पानी को साफ करें ताकि मच्छरों की अफज़ाइश ना हो। जिस्म को ढांप कर रखें और मच्छर भगाने वाले लोशन इस्तेमाल करें। आज की ये वीडियो से आपको फिलियारियासिस के बारे में मुकम्मल मालूमात मिली होंगी। अगर आपको ये मालूमात मुफीद लगें तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल होम्योपैथिक डॉक्टर शेख मोहम्मद अदनान चिश्ती को सब्सक्राइब करें। कोई सवाल हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर शेख मोहम्मद अदनान चिश्ती। मैं आपको 24 साल तजर्बे के मुताबिक मेडिसिन बताता हूँ। उम्मीद है आप इन मेडिसिन की अलामात को गौर से सुनते होंगे। हमारी आज की जो मेडिसिन है, आज हम बात करेंगे एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जो उन लोगों के लिए ख़ास नेमत है जो शराब, भंग, चरस या किसी भी नशे की आदत से निजात पाना चाहते हैं। ये दवा कोरेस्कस ग्लैंडियम
اسپیرٹس۔ آئیے جانتے ہیں یہ دوا کس مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے اور اسے کیسے استعمال کیا جاتا ہے۔ کوریسکس گلینڈیم اسپیرس، یہ دوا جو بلوط ایکورن کے پھل یعنی کہ اوک ٹری سے تیار کی جاتی ہے، یہ دوا جسم سے نشے کے زہریلے اثرات کو صاف کرتی ہے، جگر کو طاقت دیتی ہے اور نشہ چھوڑنے کے دوران جو بھی بے چینی اور کمزوری ہوتی ہے اسے ختم کر دیتی ہے۔ اگر کوئی شخص شراب، بھنگ، چرس یا افیون کا عادی کو ہو تو یہ دوا اس کے لیے بہترین ہے۔ یہ دماغ سے نشے کی طلب کو کم کرتی ہے، کریونگ ختم کرتی ہے اور جسمانی کمزوری کو دور کرتی ہے۔ جگر کی بڑھوتری اور درد، اکثر نشہ کرنے والوں کا جگر بڑھ جاتا ہے۔ ایسے مریضوں میں جگر کا بھاری پن، درد یا سوجن ہو تو کوریسکس بہترین میڈیسن مانی جاتی ہے۔ یہ جگر کو ڈیٹاکس کر کے نارمل سائز میں لاتی ہے۔ یہ دوا ان مریضوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے جن کا بلڈ پریشر زیادہ ہو اور اس کی وجہ سے نشہ یا جگر کی خرابی ہو۔ یہ دل کی دھڑکن کو متوازن کرتی ہے اور بلڈ پریشر کو نارمل کرتی ہے۔ دماغی سکون اور نیند میں بہتری، نشہ چھوڑنے والے مریضوں کو اکثر چڑچڑاپن، بے خوابی، ذہنی کمزوری کا سامنا ہوتا ہے۔ ان تمام علامات میں یہ دوا بہت گہرا اثر کرتی ہے۔ اس کی بہترین جو مدر ٹنکچر کی خوراک ہے وہ 10-10 قطرے دن میں 3 بار استعمال کروائے جائیں۔ اگر نشہ بہت پرانا ہو تو خوراک 15-15 قطرے دن میں 3 بار استعمال کروائے جائیں۔ علاج کا دورانیہ 1 سے 3 ماہ رکھا جا سکتا ہے علامات کے مطابق۔ اگر واقعی مریض کو نشے سے نجات دلانا چاہتے ہیں تو اس دوا کے ساتھ اور بھی میڈیسن بہت زیادہ مؤثر ہیں، جیسا کہ ایوناسٹیوا مدر ٹنکچر، اس کے 15-15 قطرے دن میں 3 بار استعمال کروائیں، یا ہمارا اپنا بنا ہوا کمبینیشن، وہ بھی آپ VP پارسل منگوا سکتے ہیں۔ علاج کے دوران ہر قسم کا نشہ مکمل طور پر ترک کریں، دوا ہمیشہ صاف پانی میں لیں، متوازن غذا، تازہ پھل، سبزیاں اور مناسب نیند لازمی رکھیں۔ کوریسکس گلینڈیم ایک ایسی ہومیوپیتھک دوا ہے جو جسمانی، ذہنی اور روحانی طور پر نشے سے نجات دلاتی ہے۔ یہ جگر کی صفائی، نیند کی بہتری، دماغی سکون کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہ دوا ان مریضوں کے لیے امید کی کرن ہے جو دل سے نشہ چھوڑنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ یا آپ کے کسی عزیز کو نشے سے نجات درکار ہیں تو ان ہومیوپیتھک ادویات سے مدد لیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ میرے دیے گئے نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے تاکہ یہ پیغام ان تک بھی پہنچے جو نشے کی لعنت سے تنگ آ چکے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی دوا اور نئے موضوع کے ساتھ۔ ہومیوپیتھک ڈاکٹر شیخ محمد عدنان چشتی کو اجازت دیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ میرا YouTube چینل دیکھ رہے ہیں۔ میرا نام ہومیوپیتھک ڈاکٹر شیخ محمد عدنان چشتی۔ امید ہے آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم انتہائی اہم اور حساس موضوع پر بات کریں گے جسے ہمارے معاشرے میں عام طور پر اٹھراء کہا جاتا ہے۔ طبی زبان میں بار بار حمل ضائع ہونے کو ریکرنٹ پریگنینسی لاس کہا جاتا ہے۔ اگر کسی خاتون کو بار بار حمل ٹھہرنے کے باوجود حمل ضائع ہو جائے، بچے کی نشو و نما رک جائے یا حمل کے دوران بچے کی موت واقع ہو جائے تو اس کے پیچھے مختلف طبی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہر حمل ضائع ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ عورت کے جسم میں کوئی مستقل خرابی ہے۔ بہت سے ابتدائی حمل ضائع ہونے، جسے ارلی مس کیرج کہتے ہیں، بچے کے کروموسومز میں خرابی بنیادی وجہ ہو سکتی ہے۔ اکثر ایسی صورت میں یہ عورت کی کسی قسم کی کوئی غلطی کی وجہ نہیں ہوتا، لیکن اگر حمل بار بار ضائع ہو رہا ہو، خاص طور پر 2 یا اس سے زیادہ مرتبہ، تو اس مسئلے کی مکمل طبی جانچ، میڈیکل ایویلویشن ضروری ہے۔ اٹھراء کی ممکنہ وجوہات
18 या बार बार हमल ज़ाया होने की कई वजूहात हो सकती हैं। सबसे पहले क्रोमोसोम्स की खराबी हो सकती है, जिसकी वजह से बच्चे की नशोनुमा सही तरीके से नहीं हो पाती। दूसरी वजह रहम की साख्त में खराबी हो सकती है। बाज़ ख़वातीन में रहम में फाइब्रॉइड रसौली पोलप मौजूद होता है, जबकि बाज़ केस में रहम के अंदर दाग या झिल्ली बन जाना ये भी मसला पैदा कर सकती है। इसके अलावा थायराइड डिजीज़ यानी कि जिसे हम गिल्लड़ कहते हैं, शुगर और पीसीओज़ का बनना भी हमल ज़ाया करने के मसाइल में किरदार अदा कर सकते हैं। एक अहम बीमारी एंटी फास्फोलिपिड सिंड्रोम, जिसमें खून जमने का मसला पैदा हो सकता है और बाज़ ख़वातीन में हमल ज़ाया होने का ख़तरा बढ़ सकता है। कुछ केस में जेनेटिक मरूसी मसला भी हो सकता है और बाज़ औक़ात मुकम्मल तिब्बी जांच के बावजूद भी वजह मालूम नहीं हो पाती। फिर इसलिए कुछ टेस्टों की ज़रूरत पड़ती है। अगर किसी खातून को बार बार हमल ज़ाया हो रहा है तो डॉक्टर मुकम्मल हिस्ट्री, पिछली बीमारी और हमल की तफसील लेते हैं और ज़रूरत के मुताबिक मुख्तलिफ टेस्ट करवाए जा सकते हैं। सबसे पहले अल्ट्रासाउंड, थायराइड के टेस्ट, शुगर का टेस्ट, खून जमने वाला क्लॉटिंग ब्लड टेस्ट, जीनियाती टेस्ट और रहम की साख जांचने के लिए मुख्तलिफ इमेज टेस्ट शामिल हैं। इसलिए सिर्फ़ ये समझ लेना कि रहम कमज़ोर है और बग़ैर वजह मालूम किए दुआ को शुरू कर देना मुनासिब तरीका नहीं। होम्योपैथिक में कौन सी अद्वियात ज़ेरे गौर आती हैं? मटीरिया मेडिका के मुताबिक सबसे बेस्ट सबाइना, जो कि फ़र्स्ट मंथ और सेकंड मंथ में मिसकैरेज हो जाए तो 200 की एक खुराक सुबह निहार मुँह दी जाए तो इंशाल्लाह रहम की कमज़ोरी भी ठीक होगी और बार बार हमल का ज़ाया होने का ख़तरा भी ठीक हो जाएगा। उसके बाद हमारी दूसरी मेडिसिन है सीपिया, ये भी 200 ताकत में एक खुराक रोज़ाना ली जाए। उसके बाद काइलोफाइलम 200 ताकत की एक खुराक रोज़ाना ली जाए। उसके बाद वाइबर्नम ओपुलस मदर टेंक्चर, इसके 15-15 कतरे दिन में 3 बार इस्तेमाल करवाए जाएँ। और आखिर में सबसे बेस्ट और ज़बरदस्त मेडिसिन जिसको मैंने अपनी प्रैक्टिस में इस्तेमाल करवाया, अल्ट्रस फेरिनोसा मदर टेंक्चर, इसके 15-15 कतरे दिन में 3 बार इस्तेमाल करवाए जाएँ। इसके इस्तेमाल करने से रहम को मुकम्मल तौर पर ताकत मिलती है और सोजिश वगैरह भी ख़त्म हो जाती है। और आखिर में स्केल कार मदर टेंक्चर, जिन औरतों को पीरियड का मसला हो वो 15-15 कतरे दिन में 3 बार इस्तेमाल करें। और इसके लिए ज़रूरी है कि जब हमल हो जाए तो स्केल कार मेडिसन हरगज़ इस्तेमाल मत करें। बहुत सी ख़वातीन को प्रेगनेंसी यानी कि बार बार हमल ज़ाया होने के बावजूद उसके बाद में कामयाब हमल भी होता है। इसलिए हमारा पैगाम ये है कि वजह तलाश करें, ज़रूरी टेस्ट करवाएं और उसके बाद आप हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। अगर आपको ये मालूमात मुफीद लगी हों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह ताला हर माँ को सेहतमंद औलाद की नेमत अता फ़रमाए, आमीन। होम्योपैथिक डॉक्टर शेख मोहम्मद अदनान चिश्ती को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। हुजूर फरमाने लगे, अल्लाह क़यामत के दिन अपने बंदों से सबसे पहला सवाल ये फरमाएगा, क्या तुम मेरी मुलाकात को पसंद करते थे? ओए होए होए, क्या तुम्हारा मिलने को जी चाहता था? कभी ऐ हकीकत मुंतज़िर नजर आ न लिबास मजाज। इकबाल कहते हैं, तेरे करम इतने हैं दिल करता है तुझे देखें। कभी कभी ऐ हकीकत मुंतज़िर नजर आ न लिबास मजाज में। लाखों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीने नियाज में। तुम्हारा दिल करता था मुझसे मिलने को? हुजूर फरमाते, बंदे अर्ज करेंगे, मालिक बड़ा दिल करता था। अल्लाह फिर पूछेंगे, क्यों दिल करता था तुम्हारा? दिल करता था तो क्यों करता था? अर्ज करेंगे, मालिक इसलिए कि हमें उम्मीद थी कि तू माफ भी कर देगा, रहमत भी फरमाएगा। इस माफी की उम्मीद पर दिल करता था तू मिले। हुजूर फरमाते हैं, फिर रब फरमाएगा, मुझ पर वाजिब है, मैंने अपने करम से वाजिब कर लिया है कि आज तुम्हें जन्नत अता करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं, उम्मीद है आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे एक नहायत अहम क्लासिकल होम्योपैथिक मेडिसिन दवा के बारे में, जिसका नाम है लिथियम कार्बोनिकम। ये मेडिसिन ख़ास तौर पर यूरिक एसिड की ज़्यादती, गाउट, रूमेटिज़म और बाज़ कल्बी और गुर्दों की अलामात में ज़ेर गौर आती है। ये दवा किन मरीज़ों की अलामात में मुफीद समझी जाती है? अगर मरीज़ को बार बार यूरिक एसिड बढ़ने की शिकायत हो
गाउट की वजह से ख़ास तौर पर पाँव के अंगूठे, उंगलियों या छोटे जोड़ों में शदीद दर्द, सूजन या गांठें बन रही हों तो ये दवा मटीरिया मेडिका के मुताबिक बहुत अहमियत रखती है। कि एक बहुत नुमायाँ अलामत ये है कि सर दर्द खाना खाने से बेहतर हो जाता है। इस तरह मैदे में तेज़ाबियत, खाली पेट दर्द या भूख जैसा एहसास भी खाने से कम हो सकता है। अगर रूमेटिज़म के साथ दिल की धड़कन या दिल के मकाम पर दर्द भी हो तो लिथियम कार्बोनेटम पर ज़रूर गौर किया जाना चाहिए। गुर्दों की अलामात में दाएं गुर्दे के मकाम पर दर्द और पेशाब में सुर्ख रेत नुमायाँ और डिपॉजिट, जो कि हम आम रूटीन में जो यूरिन टेस्ट करवाते हैं उसके अंदर ज़ाहिर हो तो उसके लिए बेहतरीन मेडिसिन है। जोड़ों के दर्द में अक्सर मरीज़ बताता है कि हरकत करने से आराम मिलता है, जबकि ज़्यादा देर आराम करने से दर्द बढ़ जाता है। इसी तरह गर्म पानी या गर्माइश से भी तकलीफ़ में कमी महसूस होती है। इस दवा में अलामात अमूमन सुबह के वक़्त और जिस्म के दाएं हिस्से में ज़्यादा नुमायाँ हो सकती हैं। इस मेडिसिन को किस पोटेंसी में इस्तेमाल किया जाए? ज़्यादातर 30 ताकत में अगर ली जाए तो 5-5 कतरे दिन में 3 बार, और अगर 200 ताकत में ली जाए तो 5 कतरे एक टाइम रोज़ाना सुबह निहार मुँह इस्तेमाल करें। लिथियम कार्ब सिर्फ यूरिक एसिड बढ़ जाना इस्तेमाल करने की दलील नहीं। कार्बोनेटम होम्योपैथिक में हर दवा का इंतखाब मरीज़ की मजमूई जिस्मानी, जहनी और मखसूस अलामात की बुनियाद पर किया जाता है। अगर आपको ये मालूमात मुफीद लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। होम्योपैथिक डॉक्टर शेख मोहम्मद अदनान चिश्ती को इजाज़त दें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर शेख मोहम्मद अदनान चिश्ती। उम्मीद है आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एडोनस वर्नैलिस मदर टिंचर के बारे में, जो होम्योपैथिक में दिल की कमज़ोरी के लिए मारूफ मदर टिंचर समझी जाती है। क्या एडोनस वर्नैलिस दिल की धड़कन को बेहतर बनाने में मदद देती है? किन मरीजों में इसे रवायती तौर पर इस्तेमाल किया जाता है? और क्या ये दिल की बंद शरियानों को खोल सकती है? आइए इसके बारे में इस वीडियो में जानते हैं। ये वीडियो आखिर तक आप ज़रूर देखें। होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका के मुताबिक एडोनस वर्नैलिस मदर टिंचर इन मरीजों में ज़ेर गौर आती है जिन्हें दिल की कमज़ोरी, सांस फूलना, जिस्म में सोजन, दिल की धड़कन की बेतरतीबी और दिल की पंपिंग कम होने की अलामात हों, और कार्डियक्स में भी ये बहुत ज़्यादा काम करती है। कमज़ोर दिल और सुस्त कमज़ोर नब्ज़ के लिए ये एक बेहतरीन मेडिसिन है। अक्सर मरीज़ों को चक्कर आना, सर दर्द होना, खोपड़ी तक इसका दर्द महसूस होना, आंखें फैली हुई, दिल में हल्की हल्की दर्द, फैटी दिल, कार्डियक दमा, ऐसे मरीजों में ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। अहम बात, अगर एंजियोग्राफी में दिल की शरियानें मुकम्मल तौर पर बंद हों या कार्डियोलॉजिस्ट ने बाईपास सर्जरी या स्टेंट तजवीज़ किया हो, एडोनस वर्नैलिस इन बंद शरियानों को मुकम्मल तौर पर नहीं खोल सकती। ये मेडिसिन जो शरियानें तंग हों उनको तो ज़रूर खोल सकती है, लेकिन जो शरियानें मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएं, ब्लॉक हो जाएं, उनको ये मेडिसिन मुकम्मल तौर पर उनकी शरियानें नहीं खोल सकती। इस दवा के 15-15 कतरे दिन में 3 बार 1 कप पानी में डालकर इस्तेमाल करें। इस मेडिसिन से इंशाल्लाह ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा और दिल की तंगी वाली बंद शरियानें वो खुल जाएंगी, लेकिन जो मुकम्मल तौर पर शरियानें बंद हैं वो नहीं खुलेंगी। अक्सर डॉक्टर होम्योपैथिक ये दावा करते हैं इस मेडिसिन के बारे में कि ये मुकम्मल ब्लॉकेज वाली बंद शरियानें खोल देती है, जबकि ऐसा नहीं। मेरे तजर्बे के मुताबिक और मटीरिया मेडिका के मुताबिक ये पिचकी हुई शरियानों को खोलती है, ना कि मुकम्मल बंद शरियानों को। अगर ये मालूमात आपको अच्छी लगी हों तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर करें। अगली वीडियो के लिए होम्योपैथिक डॉक्टर शेख मोहम्मद अदनान चिश्ती को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम।
आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर शेख मोहम्मद अदनान चिश्ती, अल-नूर होम्योपैथिक क्लिनिक, इलामा इकबाल रोड, मियाँ चन्नू, पाकिस्तान। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है थायराइड ग्लैंड या गोइटर। आपका थायराइड आपकी गर्दन के सामने एक छोटा तितली के साइज़ का गदूद है। ये हार्मोन्स बनाता है जो जिस्म के तवानाई के इस्तेमाल को कंट्रोल करता है। ये हार्मोन्स आपके जिस्म के तकरीबन हर उज़्व को मुतासर करते हैं और आपके जिस्म के बहुत से अहम अफ़आल को कंट्रोल करते हैं, मसलन मेटाबॉलिज़्म, जिस्मानी दर्जा हरारत, मजाज और जोशो खरोश, नब्ज़ और दिल की धड़कन और हमारा हाजमा। गोइटर का तल्लक आपके जिस्म में थायराइड हार्मोन की बेकायदा मिकदार, हाइपर थायराइडिज्म या हाइपोथायराइडिज्म या थायराइड हार्मोन्स की नॉर्मल सतह से हो सकता है। गोइटर की कई मुमकिन वजूहात हैं। ये वजह पर मुनहसर है कि इसे इलाज की ज़रूरत हो सकती है या नहीं। गोइटर की इकसाम क्या हैं? गोइटर को चंद मुख्तलिफ तरीक़ों से दर्जा बंदी किया जा सकता है। इसके बढ़ने का तरीका और अगर आपके थायराइड हार्मोन की तरह बाकायदा है या नहीं। गोइटर किस को मुतासर करता है? हमल के दौरान जब बच्चे की ग्रोथ हो रही होती है और 40 साल की उम्र के बाद ये अक्सर ज़्यादा हो जाता है। इसकी वजह से मोटापा, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, अगर आपके सर और गर्दन को तिब्बी इलाज के लिए ताबकारी का सामना करना पड़ा है, या अगर आपको थायराइड की बीमारी की ख़ानदानी तारीख़ है तो आपको गोइटर होने का ज़्यादा ख़तरा है। गोइटर कितना आम है? गोइटर निस्बत दूसरे मुल्कों में 5% लोगों को मुतासर करते हैं। दुनिया भर में गोइटर की सबसे आम वजह आयोडीन की कमी है। एक अंदाजे के मुताबिक गोइटर 2.2 बिलियन लोगों को आयोडीन की कमी की वजह से होता है। जिसको आयोडीन की कमी ज़्यादा होगी उसको थायराइड ज़्यादा होगा। हल्की आयोडीन की कमी के साथ गोइटर के वाक़यात सिर्फ 5% से 20% तक होते हैं। आयोडीन की शदीद कमी की वजह के साथ
इसको 30% से ज़्यादा तक पूरी दुनिया में देखा गया है। अलामात और वजूहात: ज़्यादातर गोइटर बेदर्द होते हैं, लेकिन अगर आपको थायरोडाइटिस, सोजन और थायराइड गिल्टी है तो ये तकलीफ़ देह भी हो सकता है। अहम अलामात: आपकी गर्दन के सामने गले का फूल जाना, गले के निचले हिस्से में तंगी का एहसास और ग़ज़ार निकलने में मुश्किल पेश आना, आवाज़ का ख़राब हो जाना, गर्दन की रग की सूजन, सर को ऊपर उठाते हुए चक्कर आना, सांस लेने में दुश्वारी। जो अलामात बहुत कम नज़र आती हैं वो ये हैं: सांस लेने में तकलीफ़, खांसी, घबराहट, वज़न में कमी। ये चीज़ें बहुत कम अलामात इसकी शो होती हैं। वर्जिश के बग़ैर पसीना आना, कमरे के दर्जा हरारत में इजाफ़ा महसूस होना, थकावट महसूस करना, कब्ज़ और जिल्द का खुश्क हो जाना और माहवारी में कमी। ये अलामात भी कम थायराइड के केसों में नज़र आती हैं, लेकिन माहवारी का अक्सर बंद हो जाना सबसे पहले थायराइड का टेस्ट करवाना चाहिए। कुछ मरीज़ों में थायराइड का कैंसर भी होता है, इसलिए इसका सीटी स्कैन, एमआरआई या बायोप्सी ज़रूर करवानी चाहिए और अल्ट्रासाउंड से भी इसकी तशख़ीस की जा सकती है। गिलट की चाहे कैंसर हो, चाहे कुछ भी गिल्टी हो, उसके अंदर रसौली हो या उसका साइज़ बढ़ गया हो, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं। इंशाल्लाह होम्योपैथिक इलाज से आपको सर्जरी करवाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। जिन लोगों का थायराइड बढ़ जाता है उनके लिए आम चीज़ों का इस्तेमाल वो ये है: आयोडीन मला नमक इस्तेमाल किया जाए, दूध की मसनूआत इस्तेमाल की जाएं, एग यानी अंडे इस्तेमाल किए जाएं, तिल के बीज, गरीदार मेवे, गाय का गोश्त, ब्राउन चावल, सेब, दही, चने और काजू और शहद। ये चीज़ें मरीज़ को इस्तेमाल करनी चाहिए। और जो चीज़ें बिल्कुल कम इस्तेमाल करनी चाहिए और बिल्कुल नहीं करनी चाहिए: चीनी, चिप्स, फास्ट फूड। ये चीज़ें बेहतर तो ये है कि तर्क कर दी जाएं, अगर खानी भी हों तो बिल्कुल थोड़ी मिकदार में इस्तेमाल की जाएं। होम्योपैथिक में इसका इलाज, इसकी बेस्ट मेडिसन, जिन मरीज़ों का मोटापा बहुत ज़्यादा हो, थायराइड की वजह से माहवारी रुक गई हो, तो उन मरीज़ों को कलकेरिया कार्ब 200 की एक खुराक रोज़ाना इस्तेमाल करनी चाहिए। किसी भी होम्योपैथिक स्टोर से ये आपको मिल जाएगी। उसके बाद दूसरी हमारी मेडिसन है
आयोडियम सीएम। आयोडियम सीएम की एक खुराक इस्तेमाल करने से आयोडीन की कमी पूरी हो जाएगी और थायराइड इंशाल्लाह ठीक होना शुरू हो जाएगा। तीसरी हमारी मेडिसन है थायरोडीनम 3x टैबलेट। थायरोडीनम 3x 2 टैबलेट सुबह, 2 दोपहर और 2 शाम पानी के साथ इस्तेमाल करें। मसूद कंपनी का HR नंबर 53 जिसको हम 53 कहते हैं, इसके 15 कतरे सुबह, 15 दोपहर और 15 शाम दिन में 3 बार इस्तेमाल करें। तो कैंसर की सूरत में आप होम्योपैथिक डॉक्टर से रुजू करें। अगर गिल्टी बहुत ज़्यादा हो या ट्यूमर हो उसके अंदर, तो थूजा 200 की एक खुराक रोज़ाना इस्तेमाल करें। नज़दीक तरीन कोई डॉक्टर अवेलेबल ना हो तो हमारे दिए गए नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। तो जिन लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। जिन दोस्तों ने कर लिया है उनका शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर शेख मोहम्मद अदनान चिश्ती, इलामा इकबाल रोड, मियाँ चन्नू, पाकिस्तान, अल नूर होम्योपैथिक क्लिनिक, साबिक लेक्चरर फैज़ान होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, लेक्चरर इब्न सीना होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज। तो मेरा आज का जो टॉपिक है वो है सर्वाइविकल पेन या सर्वाइविकल नर्व्स का हड्डी के अंदर फंस जाना। तो इसकी होम्योपैथिक अद्वियात कौन सी हैं, इसकी अलामात क्या हैं और ये कैसे ठीक होगा, ये आज के टॉपिक में सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ये आपकी हड्डी की गर्दन के मोरे हैं। ये 7 मोरों पर मुश्तमिल होता है। ये आपके सर के वज़न के लिए मदद फराहम करता है, आपकी रीढ़ की हड्डी को घेरता है और इसकी हिफाजत करता है और सर की मुख्तलिफ हरकत की इजाज़त देता है। बहुत सी हालतें आपकी रीढ़ की हड्डी के इस हिस्से को मुतासर करती हैं। गर्दन में दर्द, गठिया का दर्द, हड्डियों और डिस्क की बीमारी और स्टेनोसिस, इनको ये ज़ाहिर करता है। तो इंशाल्लाह इसकी सर्जरी करवाने की ज़रूरत नहीं। होम्योपैथिक इलाज से इंशाल्लाह गर्दन के मोरों को और उसके नर्व्स को ठीक किया जा सकता है। गर्दन की हड्डी आपके सर को सहारा देती है। सर का वजन 10 से 13 पाउंड तक का होता है। ये आपके सर को, गर्दन को आगे झुकने, पीछे झुकने, एक तरफ दूसरी तरफ मुड़ने, घूमने की इजाज़त देता है। ये 7 मोरे जिसको हम C1, C2, C3, C4, C5, C6 और C7 कहते हैं, इनके मुख्तलिफ फंक्शन होते हैं। C1 आसाबे गर्दन, पहले 3 आसाब हैं और सर और गर्दन की हरकत और एहसास को कंट्रोल के जिम्मेदार हैं। C1 रीढ़ की हड्डी से निकलने वाला आसाब का पहला जोड़ा सर, खोपड़ी और पिट्यूटरी ग्लैंड और अंदरूनी और दरमियानी कान को
एहसासात फराहम करता है। नंबर 2 जो है वो है C2, सर के ऊपर वाले हिस्से को एहसास फराहम करता है। C3 चेहरे के पहलू और सर के पिछले हिस्से में एहसास फराहम करता है। उसके बाद है C4, ऊपर की तरफ कंधे की हरकत और डायाफ्राम को कंट्रोल करता है और गर्दन और कंधों और बाजुओं को एहसास फराहम करता है। उसके बाद C5, पट्ठों और बाजुओं और नीचे कोहनी तक एहसास फराहम करता है। नंबर C6, कलाई के पट्ठों को कंट्रोल करता है, बाजू और हाथ के अंगूठों की तरफ सनसनाहट फराहम करता है। यानी कि 7 मोरों में जो मसला होगा वो MRI में आएगा कि कौन सा मोरा दबा हुआ है, जिसकी वजह से कौन कौन से अज़ा मुतासर हुए। C7, कलाई के पट्ठों को कंट्रोल करता है और बाजुओं के पिछले हिस्से और बाजू के पिछले हिस्से और दरमियानी उंगली तक सनसनाहट फराहम करता है। C8, हाथों को कंट्रोल करता है और बाजुओं के गुलाबी हिस्से को ताकत या सनसनाहट या एहसासात फराहम करता है। इसको डायग्नोज करने का तरीका क्या है? एक्सरे करवाया जाता है, उसके बाद MRI करवाया जाता है या CT स्कैन करवाया जाता है। C1 से लेके C6 में छोटे छोटे सुराख आपके दिमाग तक खून को लेकर जाने वाली शरेयानों को रास्ता फराहम करते हैं। पूरी रीढ़ की हड्डी में रीढ़ की इस हिस्से का वाहद ये हिस्सा है जिसमें हड्डियों में सुराख होते हैं ताकि शरेयानों को आसानी से खून गुजरने में मुश्किल पेश ना आए। इस बीमारी की वजूहात क्या हैं? ऑस्ट्रो आर्थराइटिस, स्टेनोसिस, हर्निएटेड डिस्क, ज़हनी तनाव, जिस्मानी तनाव, दिमाग के अंदर ट्यूमर का हो जाना, सिस्ट का बन जाना, गर्दन तोड़ बुखार, कैंसर, शुगर इसमें शामिल हैं। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आराम की ज़रूरत होती है। एक नरम सर्वाइकल कॉलर लगाएं जो कि गर्दन को सहारा देता है। सख्त काम से परहेज किया जाए, थेरापी ज़रूर करवाएं। बहुत से डॉक्टर इसका सर्जरी का मशवरा देते हैं। हमारी बहुत अच्छी मेडिसिन जो है वो कास्टिकम 200 ताकत में एक खुराक रोज़ाना, कलकेरिया फास्ट 6x 4 टैबलेट सुबह, 4 दोपहर और 4 शाम आपने लेनी है। इसके बाद जिन मरीज़ों के हाथ पाँव सो जाएं वो या हाथ कांपने शुरू हो जाएं तो वो अगैरिगस हमारी होम्योपैथिक की मेडिसिन 200 ताकत में एक खुराक रोज़ाना लेंगे। तीसरी हमारी मेडिसिन है मैग्नीशिया फास्ट। मैग्नीशिया फास्ट की 4 टैबलेट सुबह, 4 दोपहर और 4 शाम इस्तेमाल करें। इससे दर्द जो है वो गर्दन की रुक जाएगी इंशाल्लाह। मेडिसिन है क्यूपर मेटालिकम, क्यूपरमेट 200 ताकत में एक खुराक रोज़ाना इस्तेमाल करें। इसके बाद मसूद फार्मेसी का HR56 और HR31 भी मोरों को दर्दों को आराम देता है। काकुलस इंडिका बहुत अच्छी मेडिसिन है
200 ताकत में एक खुराक रोज़ाना इस्तेमाल की जाएगी। उसके बाद है कौरकुमा लौंगा मदर टेंचर, जिसको हम हल्दी कहते हैं। इसके 10-10 कतरे दिन में 3 बार पानी में डालकर इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह इससे भी अफाका होगा। उसके बाद यह है ग्वाइकम मदर टेंचर। ये भी गर्दन के मोरों और कमर के मोरों को बहुत फ़ायदा देती है। इसके भी 10-10 कतरे दिन में 3 बार पानी में डालकर इस्तेमाल करें। तमाम अद्वियात ख़रीदने से पहले होम्योपैथिक डॉक्टर से मशवरा ज़रूर कर लें। तो जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो दोस्त चैनल सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने कर लिया उनका शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर शेख मोहम्मद अदनान चिश्ती, अल-नूर होम्योपैथिक क्लिनिक, इलामा इकबाल रोड, मियाँ चन्नू, पाकिस्तान। हमारी आज की जो मेडिसन है मटीरिया मेडिका की, वो है एसिड ऑक्ज़ालिक या ऑक्ज़ालिक एसिड। ये दवा हराम मगज़ पर ख़ास अमल व असर रखती है, चुनाचे आसाबी अलामात बहुत नुमायाँ हैं। आम जिस्म कमज़ोर और सुन हो जाना जैसे फालज होता है, आसाबी दर्दें, आसाबी कमज़ोरी, लड़खड़ाती चाल, आज़ा अकड़े हुए, जैसे किसी को लर्ज़ा तारी हुआ हो, तशन्नुज, हिस्स का जाते रहना, यानी कि कोई भी चीज़ बाजुओं को टच हो जाए या जिस्म को टच हो, उसको एहसास ही ना हो। कंधों से उंगलियों के सरों तक हाथ पाँव का सुन हो जाना, कमर दर्द जो हराम मगज़ की ख़राबी से पैदा हुआ हो, कमर बहुत कमज़ोर और जिस्म को ना संभाल सके, जैसे कि डिस्क के हिल जाने में अक्सर मरीज़ों में होता है। हाथ पाँव कमज़ोर और कांपते हों, जैसा कि प्रिक एसिड में बोझलपन और ऑक्ज़ालिक एसिड में सुन होना बहुत नुमायाँ हैं। रीढ़ की बीमारी में छोटी कमर और हिप सुन हो जाए और कमज़ोरी की कैफियत महसूस हो, जो कि टांगों तक फैल जाए, जैसा कि सियाटिका के मर्ज़ में होता है। अगर ओपियम को सबसे बड़ी बिला दर्द दवा कहा जाए तो एसिड ऑक्ज़ालिक को इसके मुकाबले पर मटीरिया मेडिका की सबसे बड़ी पुरदर्द दवा कहना होगा। कोई दवा इससे ज़्यादा शदीद दर्द पैदा नहीं करती। खुसिया की डोरी में शदीद आसाबी दर्दें जो ज़रा सी हरकत से ख़राब तर हो जाते हैं। टांगों में तेज़ चुभनदार दर्द जो यकदम पैदा होते हैं और सांस रोक देते हैं। दर्द काली बाइक्रोम की मानद थोड़ी सी जगह पर और शदीद मुश्किल से आधा इंच या 1 इंच लंबाई में होंगे। थोड़ी देर रहते हैं लेकिन बहुत शदीद होते हैं। रुक रुक कर दोबारा पैदा होते हैं। हरकत और इनके बारे में ख्याल करने से तेज़ हो जाते हैं। अलामात बाएं तरफ पैदा होती हैं। चुनाचे एसिड ऑक्ज़ालिक
जिस्म की बाएं जानब की दवा है। बाएं जानब वजह मुफासली और नुक्सी दर्द जो पसीना आने से बढ़ जाएं। दर्द दिल और बाएं फेफड़े की अलामात ऊपर दर्ज की जा चुकी हैं। बाएं फेफड़े के पैंदे में सोजश और इत्माए खून। इस दवा की तमाम किस्म की तकालीफ़ात, अलामात और दर्द के मुतल्लक सोचने और ख्याल करने से बढ़ जाते हैं। गुर्दों में दर्द जिसके साथ बार बार कसीर मिकदार में पेशाब आता है और कैल्शियम ऑक्सलेट खारिज होते हैं पेशाब के अंदर। नुकरस अलामात और नकाहत के हमरा ऑक्सलेट का आना, पेशाब की तरफ ध्यान जाने से फ़ौरन पेशाब की हाजत पैदा हो जाती है। दिल का फेल बहुत शदीद के तमाम जिस्म हलता है। हाथ पाँव और होंठ नीले हो जाते हैं। गले और छाती में तशन्नुज वाक़या होता है। सांस छोटा और झटके के साथ। रात को लेटने के बाद दिल का धड़कना, दमकशी के दौरे, बारी बारी दिल का धड़कना और गला बैठना, हाथ मुर्दा की मानद सर्द, जुमला अलामात मशक्क़त और हरकत से ज़्यादा। मरीज़ सर्द हवा से पुरहिस, अलामात दौरादार, आँख बहुत पुरहिस, जायका तुर्श। बकौल डॉक्टर कैंट के इस दवा को बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज किया जाता रहा है। हालांकि ये बहुत सी दिल की बीमारियों को दुरुस्त करती है और मुंदरजा ज़ैल अलामात को ठीक करती है, जो कि ऊपर हम बता चुके हैं। ये दवा किस तरह से दिल, हराम मगज़ और दिमाग पर शिद्दत से असरअंदाज होती है, ये आप इस्तेमाल करवाने के बाद इस मेडिसिन को इंशाल्लाह ज़रूर चेक करें। दवा की मरकज़ी अलामात, तकालीफ़ का ख्याल करने से तकालीफ़ का पैदा हो जाना या उसका तेज़ हो जाना, ये इसकी बड़ी अहम अलामत है। जैसा कि यूरिन के बारे में सोचना और यूरिन आ जाना। इसको 30 ताकत से ऊपर वाली ताकतों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दोस्तों, आपने डॉक्टर जेटी कैंट के मटीरिया मेडिका से अहम अलामात सुनी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो दोस्त चैनल सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने कर लिया है उनका शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। उम्मीद है आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम होम्योपैथिक की एक निहायत मुनफरद और कम मारूफ दवा के बारे में जानेंगे, जिसका नाम है प्लासेंटा। ये दवा क्या है, किस चीज़ से बनती है, किन बीमारियों में इस्तेमाल की जाती है, इसकी पोटेंसी कैसे इस्तेमाल की जाए और किन एहतियातों को रखना चाहिए, इन तमाम सवालात के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। प्लासेंटा एक होम्योपैथिक सारकोट अद्वियात को कहा जाता है, जो सेहतमंद इंसान या हैवानी हेल्थी टिश्यू बाफ्तों से तैयार की जाती है। इंसानी प्लासेंटा से तैयार की जाती है, लेकिन होम्योपैथिक के असूलों और डायलोशन के मुताबिक बार बार इसकी पोटेंसीज तैयार की जाती हैं। इस दवा को किन अलामात पर इस्तेमाल किया जाए? हमल के दौरान एक अहम प्लासेंटा उज़ू होता है, जो माँ और बच्चे के दरमियान ग़ज़ा, ऑक्सीजन और ज़रूरी ग़ज़ाई अज्जा की तरसील करता है। इसको प्लासेंटा
कहा जाता है। मटीरिया मेडिका के मुताबिक जिन मरीजों में ये अलामात पाई जाएं उनकी दुआ प्लासेंटा होगी। शदीद कमजोरी, मुसलसल थकन, खून की कमी के बाद निकाहत, खवातीन में हार्मोनल अदम तवाज़न, माहवारी की बाकायदगी, दर्द वाली माहवारी, बार बार हमल का ज़ाया होना, बाज बांझपन के केसेस में भी ये अलामात की बुनियाद पर मेडिसिन दी जाती है। जिल्द की बाज खराबियों में ये दवा इस्तेमाल की जाती है। जख्म देर से भरना, कबल अज वक्त बुढ़ापा महसूस होना, आसाबी कमजोरी, जहनी थकन, यादाश्त में कमी। जो लोग हर वक्त थके हुए महसूस करते हों अपने आप को, खुसूसन खवातीन, काम करने का दिल नहीं करता, चेहरा मुरझाया हुआ होता है, एतमाद की कमी, जिस्म में तवानाई महसूस नहीं होती, इन अलामात में ये मेडिसिन 30 ताकत में 5-5 कतरे इस्तेमाल करवाने चाहिए 1 कप पानी में डालकर। ये मेडिसिन जो अलामात मैंने बताई हैं, अगर खवातीन में ये अलामात हों तो ये मेडिसिन ज़रूर इस्तेमाल करें। ये आपको होम्योपैथिक स्टोर से मिल जाएगी। अगर किसी भी होम्योपैथिक स्टोर से अवेलेबल ना हो तो हमारे व्हाट्सएप पर आप रब्ता कर सकते हैं। होम्योपैथिक डॉक्टर शेख मोहम्मद अदनान चिश्ती को अगली वीडियो के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।